અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. એસોસિએશન ફોર પ્રોટેક્શન ઓફ સિવિલ રાઇટ્સ ગુજરાત ચેપ્ટરના લોન્ચિંગ કાર્યક્રમમાં આજરોજ અમદાવાદમાં યોજાયું હતું, જેમાં ગુજરાત ચેપ્ટરના પ્રમુખ એડવોકેટ શમશાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું કે દેશમાં લઘુમતીઓ, દલિતો અને આદિવાસીઓ વિરુદ્ધ અત્યાચારોમાં દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થતી જઈ રહી છે. તેમના બંધારણીય અધિકારોની રક્ષા કાજે આજે APCR ગુજરાત ચેપ્ટરનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, જેમાં રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય સ્તરના એક્ટિવિસ્ટ અને કાયદાના નિષ્ણાતોએ ઉપસ્થિત રહીને અમને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું છે. અમે તેમના આભારી છીએ. નવજીવન ચેનલ સાથે સંબંધિત વરિષ્ઠ પત્રકાર પ્રશાંત દયાળે જણાવ્યું કે અપરાધ માત્ર અપરાધ હોય છે. અપરાધી કોઈ પણ હોય તેને યોગ્ય સજા થવી જ જોઈએ, પરંતુ બળાત્કારનો આરોપી જ્યારે મુસ્લિમ સમુદાયનો હોય છે ત્યારે મીડિયા તેને વિધર્મી કહે છે. તો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે જ્યારે આરોપી હિન્દુ હોય તો શું તેને ધર્મી કહી શકાય? રિટાયર્ડ પ્રિન્સિપાલ સેશન જજ જ્યોત્સના યાજ્ઞિકે જણાવ્યું કે સંવિધાન મુજબ સૌને ન્યાય અને સમાનતાનો અધિકાર છે, પણ જ્યારે તેમના અધિકારોનું છડેચોક ઉલ્લંઘન થાય છે ત્યારે સામાન્ય માનવીનો શાસન અને કાયદા પરથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે. કર્મશીલ ભાવના રામ રખાયાનીએ જણાવ્યું કે અત્યાચાર સંદર્ભે તેની સંખ્યા, તેની અસરો અને તેનો આશય નહીં સમજીએ ત્યાં સુધી તેની સામે લડવાનો જુસ્સો પ્રાપ્ત નહીં થાય. તેમણે લઘુમતીઓ, મુખ્યત્વે મુસ્લિમો વિરુદ્ધ અત્યાચારોના ડેટા દ્વારા ગંભીર પરિસ્થિતિનું નિરૂપણ કરીને દર્શકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. ગુજરાતમાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં 6,600 બળાત્કાર થયા, જેમાંથી 1,000 તો માત્ર અમદાવાદમાં જ થયા છે. પછી ગુજરાતને સૌથી સુરક્ષિત રાજ્ય કયા આધારે કહી શકાય? દિલ્હીના પ્રોફેસર અપૂર્વાનંદજીએ પોતાની લાક્ષણિક શૈલીમાં જણાવ્યું કે અત્યાચારની વિરુદ્ધ લડવું ફરજિયાત છે. તમારી લડાઈ કોઈ અન્ય નહીં લડે, તમારે પોતે લડવી પડશે. દેશમાં સૌથી વધારે અન્યાય મુસ્લિમો સાથે થઈ રહ્યો છે તે આપણે સ્વીકારવું પડશે. સરકાર પોતે કાયદાઓ દ્વારા તેમને નિમ્ન કક્ષાએ લઈ જઈ રહી છે. તેમણે તેમના બંધારણીય અધિકારોની સુરક્ષા માટે APCRની રચના કરવી પડે તે જ શરમજનક બાબત ગણાય. ટ્રેનમાં પ્રજાની રક્ષક પોલીસ જ જ્યારે માત્ર મુસ્લિમ હોવાને કારણે 3 લોકોની હત્યા કરી દે તો જીવન જ અનિશ્ચિત બની જાય છે. વધુમાં મીડિયા દિવસ રાત મુસ્લિમો વિરુદ્ધ પ્રોપગન્ડા ઘડતું રહે છે. લોકસભા ચૂંટણીમાં સંસદમાં વિપક્ષ મજબૂત થયું છે, પરંતુ મુસ્લિમો જાહેરમાં વધારે કમજોર થયા છે. દિલ્હીમાં પધારેલા APCRના જનરલ સેક્રેટરી નદીમ ખાને જણાવ્યું કે મુસ્લિમોની જાહેરમાં પ્રતાડિત કરવામાં આવે છે અને મોબ લેન્ચિંગ કરવામાં આવે છે. મુસ્લિમો નથી લડી શકતા કે નથી વિરોધ કરી શકતા. અત્યાચારની સામે માત્ર 2 જ રીતે લડી શકાય છે, એક રાજકીય રીતે અને બીજું કાયદાકીય રીતે. રાજકીય લડાઈ આપણે હારી ગયા છે, હવે માત્ર કાયદાકીય લડાઈનો જ માર્ગ બચ્યો છે. ભલેને ન્યાય મળવાની સંભાવના ખૂબ જ ઓછી હોય, તેમ છતાં આપણી પાસે માત્ર બંધારણીય અને કાયદાકીય લડાઈ જ એકમાત્ર હથિયાર છે. અંતમાં કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ જસ્ટિસ થિપ્સેએ જણાવ્યું કે ભારતની સંસ્કૃતિને મહાન ગણાવી તેના ગુણગાનમાં દેશની સમસ્યાઓને ભૂલાવી દેવામાં આવી રહી છે. મુસ્લિમોના ભારત આગમન પછી દેશની દશા બગડી છે તેવા આરોપ સાથે તેમને નાગરિક નહીં, બહારના ગણવામાં આવી રહ્યા છે. તેથી જ હિન્દુ રાષ્ટ્રની આવશ્યકતા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. હિન્દુ રાષ્ટ્ર હિન્દીઓ માટે પણ સારું નથી તેવી તેમણે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સુંદર સંચાલન APCR ગુજરાતના સેક્રેટરી इकराम बैग मिर्ज़ाए કર્યું હતું. नाम भावना राम रखियानी है और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ. भावना बहन, आज जो प्रोग्राम रखा गया था, इसके पीछे का जो मकसद था वो क्या था और किस तरीके से प्रोग्राम का आयोजन किया गया? प्रोग्राम जो रखा गया था वो APCR द्वारा रखा गया था और आइडिया ये था कि सारे माइनॉरिटीज़ के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए, ताकि जो भी इनजस्टिसेस होती हैं, जो भी तकलीफ़ें होती हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म द्वारा एड्रेस किया जाए, चाहे वो सोशली हो या लीगली. गुजरात के हालात किस तरीके से हैं और कैसे आप देखते हैं? गुजरात के हालात जो हैं वो बाकी के देश में जो हो रहा है उसी तरीके से हैं, जहाँ पे तंत्र और सरकार खुद अपने हाथ में पनिशमेंट देना, जुर्म तय करना, वो सब खुद ही कर रहे हैं. सब कुछ कोर्ट के बाहर हो रहा है. आज कौन कौन आए थे खास मेहमान और क्या कुछ कहा? रिटायर्ड जज अभय टिप्सी जी थे,
प्रिंसिपल सेशंस जज ज्योत्सनाबेन याग्निक, नदीम खान थे, इकराम बेग थे, शमशाद पठान थे और अपूर्वा आनंद जी थे। अभी जिस तरीके से देखा गया कि देश में भीड़ न्याय जो है ये पीछे वो बोलना, कितना आवाज़ बंद है। खतरनाक इस देश के लिए। तनवीर पीछे बोल रहे हैं, आवाज़ बहुत कर रहा है। एक ब्रेकडाउन तो हो ही रहा है, वो सबको दिख ही रहा है। और जिन लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, जो गरीब हैं, जिनको अपने हक के बारे में भी नहीं पता, उनको नहीं समझ में आता कि वो अपने ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो किस तरह से एड्रेस करें। कैसे सुधार आया? सुधार हम लोगों को ही लाना पड़ेगा, हम सरकार के लिए वेट नहीं कर सकते। और जो भी है वो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। मेरा नाम नदीम खान है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और उसके साथ साथ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। चलिए, नदीम भाई, आज जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें देश के जो हालात हैं उस पर किस तरीके की बातचीत की गई और उसका अंजाम क्या है, किस तरीके से इस हालात में सुधार लाया जा सकता है? देखिए, देश के जो हालात हैं उस पर चर्चा की गई, उनके साथ साथ जो उसके असल यहाँ पर चर्चा इस बात पे हुई कि जो हालात हैं उन पर काबू कैसे पाया जा सकता है, उन पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। और उसमें जो ये वार्ता एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट की तरफ से मीटिंग आयोजित की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से पूरे देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन एवं हनन हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है और कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर कैसे दबाव बनाकर इस माहौल को सुधारा जा सकता है। इस पे इन सब मुद्दों पर लगातार चर्चा हुई, जिस पे अलग अलग लोगों ने बात रखी और इसकी अध्यक्षता जस्टिस खिप्से ने करी। और यहाँ पर यही बात हुई कि जब राजनीतिक रूप से आप लड़ाई हार जाते हैं या राजनीति नफरत की होने लगती है तो उस समय अदालतों में काम करके अदालतों का सहारा लेकर माहौल को हम बेहतर कर सकते हैं। और ये लगातार निरंतर चलने वाला संघर्ष है, कोई एक दिन का मामला नहीं है। तो इस निरंतर चलने वाले संघर्ष को हम लोग करेंगे और जो फिजिबल ऑप्शंस हैं लीगल एडवोकेसी के, यानी कि कानूनी सहायता के, वो पूरे किए जाएंगे। और जो देश का संविधान और जो देश की कानूनी प्रक्रियाएं हमको अधिकार देती हैं, उन अधिकारों की हम लड़ाई लड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वातावरण जो है देश का वो बदले। आपने एक रिपोर्ट भी आज पेश की कि देश में क्या हालात हैं और किस तरीके से, वो रिपोर्ट क्या थी, थोड़ी सी उस पर? देखिए, ये APCR की एक रिपोर्ट थी जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट एंगल में काम किया है। तो ये समझने के लिए ये रिपोर्ट पेश की गई थी कि किस किस प्रकार से नफरती हमले किए जा रहे हैं। कहीं पर हेट क्राइम है, कहीं पर हेट स्पीच है, कहीं मीडिया के ज़रिए हेट का माहौल बनाया जा रहा है, कहीं फेक केसेस लगाए जा रहे हैं, कहीं पे सिटीज़नशिप राइट या नागरिकता के नाम पर लोगों को उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, कहीं बुलडोज़र के नाम पे उनके मकान गिराए जा रहे हैं। और तो इस तरह के तमाम मामलों के ऊपर क्या कोर्ट से हमको हासिल हुआ है, कितनी लंबी ये लड़ाई चली है, कौन कौन लोग इसमें सहयोगी थे, इस पे इस रिपोर्ट के जरिए चर्चा की। एक मीटिंग भी रखी गई है, इसके बाद इसका क्या मकसद है? इसमें देखिए, ये जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपसे बताया कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ये एक मानव अधिकार संस्था है जो पूरे देश में काम कर रही है। गुजरात में इसका काम बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं है, लेकिन दूसरे देश के इलाकों में हमारे 300 से अधिक जिलों में इसकी इकाइयाँ हैं। तो इस बात पर इस पहली मीटिंग में चर्चा हुई कि जो अधिकतर मानवाधिकार हनन के मामले हैं वो देश के छोटे हिस्सों में, यानी कि छोटे ज़िलों में हैं, कस्बों में हैं। तो किस प्रकार से हम लोग अपनी टीम को गुजरात में ऐसा बनाएं कि हमारी टीम पूरे गुजरात के अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तालुका में काम करे। तो अगर उन तालुका में या उन शहरों में मानवाधिकार के हनन के मामले, सांप्रदायिक दंगे, हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग, इस तरह के कोई केसेस होते हैं तो हम तुरंत कैसे इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार से आपको कोई अपेक्षा है इस मामले में? सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हम देश के संविधान से अपेक्षा रखते हैं और उसी के तहत काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो कानून व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन जब कोई ख़ास मुस्लिम समुदाय से लोगों के ऊपर ऐसा कुछ आरोप लगता है तो भेदभाव के रवैये से काम कर रही है? क्योंकि जो जज थे उन्होंने भी अपने तकरीर में बात कही है।
देखिए, जब हम देश के या किसी भी इलाके के 100 केसेस को देखते हैं और 100 केसेस के रिज़ल्ट को देखते हैं तो ये अब लगने वाली बात नहीं रही, बल्कि ये साबित हो रखी बात है कि अगर अपराधी मुसलमान होगा तो तुरंत बुलडोज़र चला दिया जाएगा, अपराधी मुसलमान होगा तो इनकाउंटर कर दिया जाएगा, अपराधी मुसलमान होगा तो टांग में गोली मार दी जाएगी। ये सारी चीज़ें साबित हैं और ये भी जो जेल में मुसलमानों की जिस प्रकार से संख्या है उससे ये भी साबित है कि फर्जी मुकदमों में सबसे अधिक मुसलमान और उसके अलावा दूसरे पिछड़े तबके फंसाए जाते हैं। तो इसमें कोई नई ढकी छुपी बात नहीं है। हमको ये सब बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि इस देश की पुलिस पहले बायस थी, यानी कि पहले उसके यहाँ इक्वलिटी नहीं थी, सभी को समान रूप से नहीं देखती थी, लेकिन अब इस समय देश की पुलिस सांप्रदायिक भी है। ये जो अपने मुस्लिम एरिया में जो है, ये लोग मकान बनाने की ज़्यादा परमिशन देते नहीं हैं और जो बना लेते हैं तो उसको ये लोग सिर्फ मुस्लिम एरिया में ही तोड़ते हैं। रीज़न दरअसल किसी भी इलाके में, जैसे इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद का घर गिराया गया, उस इलाके में 5000 घर हैं, या कुछ मकान अभी जिनके बारे में चर्चा हो रही है उनका इतिहास जो है वो उस पूरे इलाके से ज़्यादा पुराना है। तो दरअसल ये कोई न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। जब देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों से और देश का राज्यों के मुख्यमंत्री मुसलमानों से बदला लेने की बात करेंगे तो कहीं कोई मामला नहीं है। तभी हम लोग ये बार बार बात कर रहे हैं कि अगर कोई अदालतें हमारी आवाज़ नहीं सुन रही तो हम लगातार वो आवाज़ को उठाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, चीखते रहेंगे और सड़कों पर भी उतरकर संघर्ष करते रहेंगे। इस देश में ये देखा गया है कुछ दिनों पहले कि 600 साल पुरानी मस्जिद, आखुंदी मस्जिद दिल्ली को भी बुलडोज़र चलाकर शहीद कर दिया गया, जबकि उस इलाके जिस संस्था ने उसको गिराया है कि इसका नक्शा नहीं पास था या अवैध है, उसकी खुद की उम्र 40 साल की है। तो 40 साल पुरानी संस्था 600 साल पुराने इस्टेब्लिशमेंट को गिरा सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ देश में जो इस्लामोफोबिया है या मुसलमानों से बढ़ती नफरत है उसका नतीजा है। और इसमें जो हमको समानता का अधिकार संविधान के जरिए मिला है, इसका उल्लंघन है और खुला खुला उल्लंघन है। तो देश अब इस मोड़ पर जा चुका है कि अब कहने सुनने से ज़्यादा बल्कि ये है कि हम सबको, जो लोग जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको एक साथ एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर आवाज़ उठानी होगी। इसी के लिए आज ये प्रोग्राम है। सर, एक बात और है कि लगभग ज़्यादातर मुस्लिम एरियो में ही नशे की प्रवृत्ति मिलती है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? या उसके लिए भी आप कोई काम, आपकी संस्था काम करेगी? हम सारी दुनिया की समस्याओं पे हम नहीं काम कर सकते हैं। सिविल राइट के जो मैटर हैं उस पर हम काम कर रहे हैं जी। बाकी ये आपको हमसे ज़्यादा पता है कि चोरी होने से पहले पुलिस वालों को पता होता है कि चोरी कहाँ हो रही है, कौन नशा का धंधा कर रहा है। और अगर देखा जाए तो बहुत सी सरकारें नशा के धंधे को कराती हैं। पंजाब पूरा इसका एग्जाम्पल है, नॉर्थ ईस्ट पूरा एग्जाम्पल है। तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग ये सवाल जाके अपने थानों में पूछें कि कितने जो है वो ड्रग पेडलर्स को, ड्रग डीलर को। અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝને યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવો, જેથી દરેક મહત્ત્વના વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે.